Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. As you all know that we are in the part, you can say the unit number 3, and the part 2 of that unit means we are dealing with the part 2 of the magnetic effect of the electric current. And in this part 2 we have done the 2 lectures, and on those 2 lectures what we learned up to now, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, let's have the quick revision on that. So the first thing that we learned from that is the whenever the charged particle is allowed to move into a uniform magnetic field, it will experience a force. So we learned this first thing, a charged particle will experience the force due to the external magnetic field whenever it is being allowed to move in that magnetic field. And after that, when we get to know that it will experience the force F is equal to BQV sine theta, we got some special cases. Case number 1, when the trajectory was straight, means when the charged particle either enters parallelly or anti-parallelly. Case number 2, when the charged particle enters the magnetic field normally. In that case, the charged particle will move in a circular trajectory, and we studied about the various parameters of that circular trajectory. And the third case that we discussed about was when a charged particle enters at any angle. In that case, it moves circular as well as straight, and we call that trajectory or the path as a helical path. So up to this trajectory we get to know about the most of the new thing, और जो सबसे important thing जिसको आपको remind में रखना है, that thing is that in magnetic field the kinetic energy is being always constant. It means the velocity of the charged particle is always constant whenever the charged particle enters the magnetic field. यानी जब भी charged particle मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा एट एनी एंगल 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री और एट एनी थीटा, मींस आपका ट्रेजेक्टरी कैसा भी हो, but one thing which always remain constant, which is the kinetic energy, or you can say the magnitude of the velocity. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा. यानी अगर चार्ज पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर कर रहा है एट एनी एंगल, इट डजंट मैटर, बट उसका वेलोसिटी हमेशा 10 मीटर ही रहेगा. अगर वो सर्कुलर पाथ पे भी है, हाँ वो अपनी डायरेक्शन जरूर बदल रहा है, जहां पे वो पहले स्ट्रेट जा रहा था, सीधा जा रहा था, नाउ इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर टाइप, और माइट बी इन अ हेलिकल पाथ. तो किसी भी पाथ पे जा रहा हो बट उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है. और ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है. एंड आफ्टर दिस, सिंस यहां से सीखने को क्या मिला कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है, द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड मींस BQV sin थीटा, जिसे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी बुलाते हैं, that force is only responsible for changing the direction. इस बात को याद रखना, because ये आज के लेक्चर में की पॉइंट हो सकता है. So magnetic force is only responsible for changing the direction. वो आपके चार्ज पार्टिकल का केवल डायरेक्शन चेंज करेगा, उसकी वेलोसिटी में कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ना तो उसे इंक्रीज करेगा ना उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा. आफ्टर दिस हम लोगों ने छोटा छोटा चीज पढ़ा, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स, और टोटल तो जो भी टोटल फोर्स आया. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग जो लास्ट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एंड किया था, दैट टॉपिक वाज वेलोसिटी सेलेक्टर. मींस इफ यू वांट टू सेलेक्ट एनी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द रैंडम ग्रुप ऑफ द चार्ज विद द पर्टिकुलर वेलोसिटी, वी रिक्वायर्ड अ क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और हम वहां से पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट कर सकते हैं. बट उसी चार्ज पार्टिकल को आप स्ट्रेट मूव करवा सकते हो जिसकी वेलोसिटी का रेशियो, the ratio of the velocity means the velocity would be equal to the ratio of electric field and the magnetic field provided. और आपको कहा ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं इसे सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ऊपर रखने वाला हूं बिकॉज इट इज द ओनली वन सिंगल रिलेशन इन द होल क्लास 12. पूरी क्लास 12 में ये अकेला एक ऐसा रिलेशन है which relates the electric field and magnetic field. तो यही एक रिलेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और अब तक का
जितना भी अब तक हम लोगों ने स्टडी किया है फ्रॉम द पास्ट यूनिट्स, हमारे पास दो ही सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विच शोज द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर इन द मीडियम एंड द मैग्नेटिक फील्ड विच शोज द मैग्नेटिक कैरेक्टर इन द मीडियम। तो इन दो कैरेक्टर को रिलेट करने वाला एक ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। माइट बी यहां पे आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा नहीं मिलेंगे, माइट बी अभी थोड़े बहुत होंगे, लास्ट असाइनमेंट में मुश्किल से हार्डली 1 or 2 न्यूमेरिकल व्हिच रिलेट्स द यूज द फॉर्मूला ऑफ E by B, बट हैव अ पेशेंस एंड बिलीव इन मी, इन फ्यूचर जब आप आगे जाएंगे, एंड इफ आई गिव यू द ओवरव्यू, वी हैव वन चैप्टर नेम्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM wave means a wave which is produced by the field of electric and magnetic, वो वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना। और अगर एक ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो डेफिनेटली ये रिलेशन आपका सबसे की पॉइंट होने वाला उस चैप्टर का। सो वेट फॉर दैट, इसे याद रखेंगे और ये इन फ्यूचर हमारे काम आएगा, बट हमने इसे यहीं पे डिराइव कर लिया है। नाउ with that note, what is the thing that we are going to start? So अब तक तो पूरा पीछे का रिवीजन था, because we have some gap between the past lecture and this lecture, तो हमने कुछ गैप रखा है because of that freshen up. Now since we are again continuing on the track, हम ट्रैक पे वापस आ रहे हैं, so let's have the revision, और हमने अब तक वही चीज डिस्कस किया। Now what is the most important thing जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, that thing is the device। डिवाइस को स्टडी करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अ वन कंप्लीट डिवाइस। और अगर मैं आपको सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सो इट ऑलवेज गिव्स यू कैरी 5 to 3 मार्क्स व्हेनेवर द मैग्नेटिक चैप्टर इज बीइंग आस्क्ड। जब भी आपके सामने मैग्नेटिक चैप्टर आएगा और जब भी एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात आएगी, तो इफ आई डिस्कस, अभी आगे जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो इफ आई से when we talk about the long questions, means the question made up of 5 marks or 3 marks, जब 5 और 3 नंबर की बात की आती है, तब हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव डिवाइस से बनते हैं, द डिवाइस which has been followed by electricity। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में डिवाइस थे पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो वहां से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑन द सेम टाइम जब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक की, और मैग्नेटिक में अगर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिटेंड करते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू सीबीएसई, आई एम टॉकिंग ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई, बिकॉज यहाँ पे 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है। सो जब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में आइडिया लगाते हैं, सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो साइक्लोट्रॉन सेज कि मैं भी एक डिवाइस हूं और मैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल हूं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है आपके लिए, because you all know that जब भी हम किसी भी डिवाइस को स्टडी करते हैं, we always go with the various element like its definition, like its working principle, after this followed by the circuit diagram, construction, working, its uses, whether it have some limitation or not, whether it have some theoretical mathematical formula or not, तो वो सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करते हैं। और ये सब इंक्लूड करने के बाद साइक्लोट्रॉन वन ऑफ द लॉन्ग न्यूमेरिकल और यू कैन से लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है, इसको लॉन्ग की कैटेगरी के लिए अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिवाइस। द नेम ऑफ द डिवाइस इज साइक्लोट्रॉन। सो नेम साइक्लो, दिस साइक्लोट्रॉन वर्ड केम फ्रॉम द नेम एज अ साइक्लोन्स। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा ना, साइक्लोन्स मीन जो सीज और कोस्टल एरियाज में एक तरीके से नेचुरल डिजास्टर है जिसमें हमारी एयर कुछ इस तरीके से बाउंड करता है, स्प्रिल करता है, तो इसे ही हम लोग साइक्लोन्स बुलाते हैं। तो उसी नाम से ये मोटिवेटेड है, दिस नेम इज बीइंग जस्ट मोटिवेटेड फ्रॉम द वर्ड साइक्लोन। व्हाई, वहां से क्यों उठाया गया, इसका आंसर आपको एंड पॉइंट तक मिल जाएगा जब हम लोग इसकी वर्किंग को समझेंगे कि व्हाई द साइक्लोट्रॉन इज बीइंग कंपेयर्ड विद द साइक्लोन, यानी मैं क्यों बोल रहा हूं। वैसे बुक्स में ये नहीं लिखा होता है, बट आई एम यूजिंग दैट क्योंकि ताकि हमारे दिमाग में वो आइडिया रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, अभी इसके नाम पे नहीं जाते हैं, अभी इसकी डेफिनेशंस और वर्किंग प्रिंसिपल पे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस विद डेफिनेशन। सो व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? सो इट इज अ डिवाइस which is used to accelerate the charge particle.
So it is a device whose function is to accelerate the charge particle. So whenever we have a charge particle, like we have the proton, we have neutron, we have alpha particle, we have electron. So it is a device whose function is to accelerate the charge particle. अगर आपके पास एक charge particle है और आप उसे accelerate करना चाहते हैं with higher energy, with higher energies. तो अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करना चाहते हैं, वी वांट टू एक्सेलरेट विद वेरी हाई स्पीड। ऑब्वियस ही बात है, स्पीड यानी वेलोसिटी ज्यादा होगा तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी डेफिनेटली ज्यादा होने वाला है। सो अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते हैं विद हाई एनर्जी, वी यूज अ डिवाइस जिसका काम है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना विद हाई एनर्जी, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन। सो ये डिवाइस आपको चार्ज पार्टिकल को क्या करके देगा? एक्सेलरेट करके देगा। नाउ वी टॉक अबाउट इट्स प्रिंसिपल, ऑन व्हाट कॉन्सेप्ट, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट डज इट वर्क। सो द प्रिंसिपल इज, अभी के लिए प्लीज सुनना और लिखना, जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखेंगे यू आर गोइंग टू क्लियर विद एवरीथिंग। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? दैट whenever a charge particle is placed in cross electric field and magnetic field, whenever a charge particle is being placed in cross electric field and magnetic field, then it get accelerated. तो जब भी आपका चार्ज पार्टिकल क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? सो क्रॉस वर्ड मीन, जब भी हम क्रॉस वर्ड बोलते हैं डेफिनेटली दिस इज द क्रॉस, और जब भी बात क्रॉस की आती है तो डेफिनेटली यहां पे एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90। So when we say 90 degree, the angle represented as the 90 degree, जब भी हम एंगल 90 डिग्री रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, so we use some word. The first word that we oftenly use to represent the angle between, और वो एंगल अगर 90 डिग्री है तो पहला वर्ड जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, that word is your perpendicular. तो हम perpendicular को ज्यादा प्रेफर करते हैं। Another word is normal. That first thing and second thing are perpendicular to each other, they are normal to each other, but there is one more word which is being used to specify the angle, specifically 90 degree, और 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और वर्ड है क्रॉस। सो क्रॉस वर्ड 90 डिग्री यूज करने के लिए है, तो क्रॉस का वर्ड मतलब ही नॉर्मल और परपेंडिकुलर होता है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल सेज कि जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यानी जब भी आप चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे रीजन में रखेंगे जहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट दोनों आपस में 90 डिग्री पे है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इन दैट केस दे गेट स्टार्ट एक्सेलरेटेड। इस केस में और इस तरीके से वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। So this is the concept and this is the principle, but how it works we will start discussing after discussing or after drawing the diagram for it. So definition and principle, okay? Now I'm going to rub it so that we can focus on the diagram. So let's discuss about the diagram. So the third point that we are going to discuss about this device is diagram. तो चलिए इसके डायग्राम को अंडरस्टूड करते हैं और वहां से वर्किंग। So first of all, if we want to accelerate the charge particle, अगर हम चार्ज पार्टिकल को क्या करना चाहते हैं? एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो what we need? We need electric field and magnetic field, और दोनों आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए। Let's have arrangement of magnetic field. चलिए magnetic field को अरेंज करते हैं। So we have two strong magnetic poles. तो हमारे पास दो strong magnetic poles हैं अभी यहाँ पे, North pole and South pole. So definitely I have taken the two magnetic poles, okay? The other end is not being a straight line, दूसरा end मैंने straight line नहीं बनाया है। You all know that from the 10th class that every pole or sorry every magnet consists of both the poles, means हर magnet के बाद दोनों poles होते हैं north and south pole. Monopole never exists. Mono means single, तो single pole कभी भी exist नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे north pole दिखाया तो हम इसे बंद नहीं कर सकते,
तो दिस लाइन और दिस सिंबल शोज कि ये मैग्नेट पीछे कंटिन्यू है, यानी इसका साउथ पोल कहीं पीछे होगा। ऑन द सेम मैनर इसका नॉर्थ पोल भी कहीं होगा। सो दैट्स व्हाई ये सिंबल बहुत रिप्रेजेंटेटिव और इंपॉर्टेंट भी है। सो वी गॉट अ टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, सो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वुड बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो वी अरेंज द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी हैव टू अरेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड टू अरेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अरेंज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ फैक्टर लेने वाले हैं, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे प्लीज। So first of all look on the diagram little bit quick, okay? तो मैं इसे थोड़ा सा टिल्ड करके बना लेता हूं। तो मैं मैग्नेट्स को थोड़ा सा टिल्ड करता हूं प्लीज, इसे मैग्नेट्स को टिल्ड रखते हैं। So this is my north pole. So to just only indicates or to just only show the 3D effect, तो थोड़ा सा, वैसे ड्राइंग तो अच्छा नहीं है मेरा, पर थोड़ा सा 3D इफेक्ट बनाने के लिए आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर, तो इसलिए इसको यूज कर रहा हूं। सो मैग्नेटिक फील्ड आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके। नाउ सिंस द मैग्नेटिक फील्ड आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो अब मैंने यहाँ पे एक डी टाइप का स्ट्रक्चर लिया, ओके। डी टाइप स्ट्रक्चर वी हैव टेकन। So this type of structure, please check this out. It is a hollow D structure. Means D type का container है, a container which is in the shape of the D, but अंदर से hollow है, अंदर से खाली है। तो एक D type का structure है but अंदर से खाली है, जैसे container होता है ना अंदर से खाली, वैसे ही। और ऐसे ही एक और लेने वाले हम लोग D structure जो अंदर से होलो होगा। तो सेम टू आइडेंटिकल डीज ले लिए हम लोगों ने यहां पे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, आप समझ पा रहे हैं इसको थोड़ा सा, ओके। जस्ट आई एम ट्राई टू इंडिकेटिंग द 3D इफेक्ट। सो इट इज शोइंग दैट कि वी हैव अ 2D टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो कि अंदर से होलो है। तो we have taken the two containers which are hollow from inside and these are called as Ds. इन्हें क्या बुलाएंगे? Ds. So what are the Ds? These are the two hollow D-shaped containers. So दो hollow D-shaped container, D capital D. तो D shape के दो hollow containers हम लोगों ने यूज किए हैं which are facing towards each other, जो दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, and these are called as Ds. और ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। सो दीज आर आवर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स और दिस इज द डी, ओके। नाउ द एंड्स ऑफ द डी आर बीइंग कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। सो दिस इज योर हाई फ्रीक्वेंसी, ये हमारा क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स है। So this is our high frequency AC source. Okay, so ये हमारा high frequency AC source. AC, you all know that, इतना तो आप लोगों ने 10th क्लास में डील किया था। AC stands for alternate current, means a current effect which changes its direction after the fixed interval of time. वो current effect जो अपनी डायरेक्शन हमेशा फिक्स इंटरवल के बाद चेंज करता है, हम उसे क्या बुलाते हैं? AC source. Means डायरेक्शन चेंज करना मतलब पोलैरिटी चेंज करना। मींस अगर A एंड पहले पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, तो हाफ साइकिल के बाद A विल बिकम नेगेटिव एंड B बिकम विद पॉजिटिव, देन अगेन यही आपका AC सोर्स है। सो हम लोगों ने एक ऐसा AC सोर्स ले लिया है। सो द फर्स्ट D को नाम दे देते हैं D1, सेकंड D का नेम है D2, ओके। सो थ्री मेन कंपोनेंट्स अभी तक हम लोगों ने यूज किए हैं। वी यूज द थ्री मेन कंपोनेंट्स, मैग्नेट्स, हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स एंड डी शेप होलो कंडक्टर, जिन्हें हम लोग डीज बुलाएंगे, ओके। एंड दिस होल सेटअप मींस द सेटअप व्हिच कंटेन्स व्हाट? द सेटअप व्हिच कंटेन्स द मैग्नेट्स, डीज एंड एवरीथिंग। दिस होल सेटअप is being inside a container which is vacuum from inside. So ये हमारा वैक्यूम कंटेनर और यू कैन से द वैक्यूम चैम्बर। तो हम लोगों ने इस पूरे सेटअप को एक ऐसे चैम्बर और एक ऐसे
जगह पे, एक ऐसे रीजन में डाला है जहां पे वैक्यूम अवेलेबल है, मींस वी आर नॉट अलाउइंग एनी मीडियम टू बी इनसाइड। हम किसी भी मीडियम को अंदर नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे चार्ज पार्टिकल, बिकॉज हमारा मोटो क्या है, व्हाट इज आवर मोटो, हमारा मकसद क्या है, आवर मोटो इज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा और अगर हम वहां पे मीडियम ही अलाउ करते हैं, लेट्स सपोज एयर को अलाउ करते हैं, so you all know that air made up of various gaseous water molecule और other substances particles से बना है। अब अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते हो, लाइक यू वांट टू एक्सेलरेट द अल्फा पार्टिकल, आप अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते हो, तो अगर आप अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते हैं और आपने उसे एयर में चाहा, तो अगर आपने एयर मीडियम रखा, चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल रन कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर वो एयर से पास होगा, इट हैव चांसेस टू कोलाइड विद द मॉलिक्यूल्स और द अदर एटम्स व्हिच फ्रॉम व्हिच द एयर इज बीइंग मेड। तो वो अल्फा पार्टिकल एयर के मॉलिक्यूल, एयर के अदर पार्टिकल से स्ट्राइक भी करेगा, और अगर वो स्ट्राइक करता है तो डेफिनेटली कॉलिजन होगा। और अब ये तो आप जानते हैं कि कॉलिजन की वजह से एनर्जी हमेशा लॉस में जाता है, क्योंकि अगर आप किसी दो बॉडी में कोलाइड करोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होगा। और हमारा क्या काम था, we want to accelerate the charge particle with higher energy। हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पे, तो हम चाहेंगे कि हमारी एनर्जी कहीं पे लॉस ना हो, इसके लिए हम उसका कॉलिजन किसी और के साथ नहीं होने देना चाहेंगे। एंड इफ वी डू नॉट वांट टू हैव द कॉलिजन, तो डेफिनेटली वी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, सो फॉर दैट वी हैव टू सेट अप द वैक्यूम। तो ये हमारा वैक्यूम चैम्बर है। तो हमारे फोर मेन कंपोनेंट्स हम लोगों ने यूज किए। वी रिक्वायर टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, we require two D-shaped hollow conductors called as the D, we require high frequency AC source, और इसे कुछ जगह पे oscillator भी बुलाया जाता है। We also call this oscillator। oscillator means the device which oscillate, जो vibrate करे, जो बार-बार polarity बदले, okay? And this whole setup is inside the vacuum chamber। And this D, ये जो D है, जो अंदर से होलो है, यहां पे उसका एक एग्जिट गेट है जिसे हम लोग बुलाएंगे विंडो। इसे क्या बुलाएंगे? विंडो। तो D के अंदर हम लोगों ने एक विंडो छोड़ दी है, यानी जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा, व्हेन द चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट विद द सुटेबल काइनेटिक एनर्जी जो हमें चाहिए था, जिससे हम आगे जाके यूज करेंगे। ओके, वेयर वी आर गोइंग टू यूज दैट चार्ज पार्टिकल, वी विल डिस्कस दैट, बट एज सून एज वी गेट द रिक्वायर्ड चार्ज पार्टिकल विद द रिक्वायर्ड एनर्जी, हम लोग उसे D से बाहर निकाल लेंगे। तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोट्रॉन। सो व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन पार्ट? लेट्स टॉक अबाउट। So diagram, and along with the diagram we are going to discuss the construction. So what is the first main important thing that we discuss? We discuss about the strong magnets. Okay, so we require the strong magnets, then we require the D, high frequency AC source inside the vacuum chamber. So let us write down the whole setup. हम लोगों ने setup कैसे लिया? So thus for construction of cyclotron we need two strong magnetic pole। हमें दो strong magnetic poles चाहिए ताकि वो magnetic field की strength अच्छी ला सके। So we require two strong magnetic poles, and in between them two hollow D-shaped conductors are being placed। Conductors, or you can say the container, two hollow D-shaped containers are placed, okay? So D-shape के दो कंटेनर्स आप लोगों ने यूज किए हैं। both containers are connected with high frequency AC source। They are connected with what? They are connected with high frequency AC source, जिसे हम लोग
ऑसिलेटर भी बुलाते हैं। एंड होल सेटअप, द होल सेटअप जो हमारे सामने है इज बीन इनसाइड अ वैक्यूम चैम्बर। तो ये सारा का सारा सेटअप वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा है, सो दैट हमारे चार्ज पार्टिकल में जब भी एक्सेलरेशन हो तो उसका कोलिजन जब भी वो एक्सेलरेट करे तो वो किसी के साथ कोलाइड ना करे। So these are the construction part that we have used. So please have the diagram and have the construction. तो एक बार डायग्राम और कंस्ट्रक्शन दोनों चीजों को ड्रॉ और प्लीज नोट इट डाउन कीजिए, so that now we can start work on the working, ताकि हम लोग वर्किंग को चेकआउट कर सके that how we are going to accelerate the charge particle. Done? Okay, now since we have discussed the construction, हमें पार्ट्स का पता चल गया क्या क्या यूज किया। अब उन पार्ट्स की इंपॉर्टेंस और उन पार्ट्स की वर्किंग को देखते हैं। नाउ वी हैव टू डीज, हमारे पास कितने डी हैं? 2 डी हैं, एंड दे आर कनेक्टेड विद एसी सोर्स। तो डेफिनेटली एसी का एक एंड पॉजिटिव होगा और दूसरा एंड नेगेटिव होगा। तो मान लेते हैं इनिशियली D1 इज पॉजिटिव एंड D2 इज नेगेटिव। वी आर एज्यूमिंग ओके, D2 भी पॉजिटिव हो सकता है, D1 नेगेटिव, इट इज योर चॉइस, आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं। But after every half cycle, you know na, AC after half cycle it is going to change its polarity. वो अपनी polarity आधी साइकिल के बाद बदलने वाला है। So after half cycle D1 will become negative and D2 will become positive. फिर after again positive negative, फिर then negative positive. This is the role of the AC source. ये AC source का रोल है। ओके, अब होगा क्यों और हमें इसकी जरूरत क्यों है वो हम बाद में डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। बट लेट्स सपोज द D1 इज पॉजिटिव एंड D2 इज नेगेटिव। सो हम लोग वर्किंग को भी एक बार देखते जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग। लेट इनिशियली ड्यू टू AC source D1 is positive and D2 is negative. This is the thing that I am assuming. I am taking that D1 is positive and D2 is negative. Okay, now in between both the D's, let's suppose we place a Q charge. हम लोगों ने दोनों D के बीच में एक Q charge को place किया है. So if we are placing the Q charge in between both the D's, so what is the state of the charge? So the state of the charge is rest. अभी चार्ज क्या कौन सी स्टेट में है? रेस्ट है। और I am saying Q charge, so definitely I am not indicating any particular sign. So you all know that whenever the sign is not been indicating or any charge, किसी भी चार्ज सिंबल पे अगर साइन नहीं है तो by default we take as a positive. So now everyone, let's start with that. हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्थ से साउथ। चार्ज पार्टिकल क्या है? रेस्ट पे है। D1 is positive and D2 is negative. तो अब तक ये सेटअप है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां लग रहा है? नॉर्थ से साउथ लग रहा है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ओके, पहला D कैसा है? फर्स्ट D is positive, सेकंड D is negative। तो एक D पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी। And you all know that electric field always, what is the direction of electric field? From positive to negative. Okay, so by this manner, by using the AC source को यूज करके और D's को कुछ इस तरीके से प्लेस करके हम लोगों ने एक D को पॉजिटिव बना दिया और दूसरी D को नेगेटिव बना दिया। और one D is positive, another D is negative. So because of that, electric field is set up. And you all know that electric field is always from positive to negative side. So how the electric field and magnetic field are related? दोनों आपस में कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे। Remember the cross electric field and magnetic field. जब हम क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। अब कैसे? Let's start with that. I hope I am clear with the setup. Now चार्ज पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव है और अभी रेस्ट पे है। तो देखो कहानी, अभी मैं वर्किंग नहीं लिख रहा हूं। सो Q रेस्ट पर है और इस Q के ऊपर दोनों फील्ड्स लग रही हैं। Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, Q पर मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है।
क्योंकि वो दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में भी हैं और दोनों डीज के बीच में भी है। अब आर बार में मैग्नेटिक फील्ड अपना एक फोर्स लगाएगा बी क्यू वी साइन थीटा, बट ये फोर्स तब लगेगा जब चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी में होगा यानी मोशन में होगा। बट अभी के लिए इनिशियली व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल? जीरो, क्योंकि हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल को रखा है, वी प्लेस द चार्ज पार्टिकल, हमने उसे कोई थ्रो नहीं किया। तो अगर हमने चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया है तो डेफिनेटली दैट चार्ज पार्टिकल इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और अगर वो रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो तो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगा, बट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कितना? QE। इलेक्ट्रिक फोर्स तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता ना, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन द चार्ज इज इन द रेस्ट। और कितना लगेगा? QE। और सिंस चार्ज पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव, और चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो वी ऑल नो दैट the positive charge particle experience the force due to electric field। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो देखो मैग्नेटिक फोर्स तो हो गया जीरो, बट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव है ना, और आप ऐसे भी देख सकते हैं d2 कैसी है? d2 नेगेटिव है, d1 पॉजिटिव है, तो d1 उसे रिपेल करेगा और d2 इसे अट्रैक्ट करेगा। और इस वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल जो कि दोनों के बीच में रखा था वो अब किस तरफ मूव किया? आवर चार्ज पार्टिकल गेट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स d1। ओके, तो हमारा चार्ज पार्टिकल जैसे ही हम लोगों ने मैग्नेट रखे, डी रखी, एसी सोर्स, यहाँ पे चलो की लगा लीजिए, और जैसे ही हम लोगों ने की को ऑन किया D1 पॉजिटिव हो गया, D2 नेगेटिव हो गया। और अगर D2 नेगेटिव है तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो D2 की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। और उधर ही क्यों जाएगा? क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टर, क्योंकि D2 नेगेटिव है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव मींस अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल। यानी इस Q चार्ज को D1 रिपेल करेगा और D2 अट्रैक्ट करेगा। डन। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट पे था, समझना प्लीज, इमेजिन दैट इफ आई एम द चार्ज पार्टिकल, अगर मैं चार्ज पार्टिकल हूं और यहां पे मेरे पास पॉजिटिव है और यहां पे मेरे पास नेगेटिव है। ऑन माय राइट हैंड साइड आई हैव पॉजिटिव, ऑन लेफ्ट हैंड साइड आई हैव नेगेटिव, बट आई एम द पॉजिटिव कैरेक्टर, सो पॉजिटिव विल रिपेल मी एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट मी। तो मैं किस तरफ मूव करना शुरू करूंगा? आई गेट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। बट जैसे ही मैं नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू करूंगा और एज सून एज आई एंटर्स द D2, जैसे ही मैं D2 में एंटर करूंगा, कहां पे एंटर करूंगा? अंदर, D2 के अंदर एंटर करने वाला हूं मैं। ओके, अब देखिए D's क्या है? तो D's क्या है? D's आर होलो कंडक्टर, ये होलो कंडक्टर्स हैं। तो पहली बात, अंदर से कैसे हैं? होलो है। जैसे आपका रूम होता है तो रूम अंदर से होलो है, और अगर अंदर से रूम होलो है, साइड बाउंड्रीज तो हैं, और अगर आप कोई चीज अंदर से होलो है तो वो बॉडी अंदर कहीं पे भी घूम सकता है। तो आपका रूम होलो है क्योंकि अंदर बस एयर है, और इमेजिन करो हमने यहाँ से एयर भी हटा दिया क्योंकि हमने इसे वैक्यूम में रखा है ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल मेरे Q चार्ज के साथ कोलाइड ना करे। अब अगर मेरा रूम होलो है तो मैं अपने रूम में घूम सकता हूं। आई एम फ्री टू मूव इन माय रूम, मेरे पास जगह है, मैं रूम में घूम सकता हूं। तो इनिशियली मैं कहां था? इनिशियली मैं रूम के बाहर था, रूम नंबर 2 के बाहर था, बट रूम नंबर 2 नेगेटिव हुआ, रूम नंबर 1 पॉजिटिव हुआ, तो नेगेटिव रूम ने मुझे अट्रैक्ट किया और मैंने गेट से एंट्री मारी। मतलब होलो है, अंदर से खाली है, भाई डैश डैश लाइन ये दिखा रहा है कि अंदर से खाली है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर घुसा तो यू ऑल नो दैट व्हाट इज दैट? कंडक्टर। क्या है वो? कंडक्टर है। और अगर वो कंडक्टर है तो ये तो आप जानते हो इनसाइड किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो पहले तो मैं यहां था, आई वॉज हियर, और ये जो इलाका है दिस रीजन वाज नॉट इनसाइड द कंडक्टर, तो ये इलाका पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव लग रहा था। ओके, हर जगह लगेगा। ओके, मैं उसे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। सो मेरा सारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव लग रहा है, बट इस रीजन में
पर जैसे ही मैंने नेगेटिव डी के अंदर एंट्री की, एज सुन एज माय चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू D2, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अब सिंस मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना था, जीरो, मैं पहले रेस्ट पे था। अब पॉजिटिव ने मुझे रिपेल किया, नेगेटिव ने मुझे अट्रैक्ट किया, तो डेफिनेटली मैं मोशन में आया। मोशन में आया इट मींस आई गेट एक्सेलरेटेड। मोशन में आया, पहले मैं रेस्ट पे था और अब मेरा वेलोसिटी लेट्स सपोज 0 से 1 मीटर हो गया। सो माय वेलोसिटी चेंजेस, और एज सून एज माय वेलोसिटी चेंजेस सो डेफिनेटली मैं एक्सेलरेटेड मोशन में हूं, तो मेरी बॉडी ने एक्सेलरेशन ले लिया और मेरा वेलोसिटी हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। कब? जब मैं कौन सी डी में आया, D2 में आया। जैसे मैं D2 के अंदर एंटर हुआ। अब D2 के अंदर की कहानी क्या है, D2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और अगर D2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अब की बार इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, जीरो, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगने वाला है D2 के अंदर। बट अब D2 और D1 दोनों ही D दोनों पोल्स के बीच में है, बोथ द D's आर इन बिटवीन द पोल्स, और अगर दोनों D पोल के बीच में है तो पूरे पोल पर यहां पे क्या लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। और मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी एग्जिस्ट करती हैं और अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका मतलब इस D2 में मैग्नेटिक फील्ड यहां लग रही है, मानते हो इस बात को, नॉर्थ से साउथ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस इलाके में। और जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां पे एंटर मार रहा है तो चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से एंट्री मार रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था D1 से D2 और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही चलेगा। तो चार्ज पार्टिकल ने अब वेलोसिटी अटेन कर लिया 1 मीटर पर सेकेंड। बट जैसे D2 में गया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं लगेगा। बट जैसे ही आप D2 में एंटर किए तो आपकी वेलोसिटी बढ़ चुकी थी, आप मोशन में आ चुके थे, और नाउ आप चार्ज हो, आप मोशन में हो और आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हो, और वो भी कितना डिग्री पे एंटर कर रहे हो बेटा, 90 डिग्री पे। तो जैसे ही D2 में एंटर किए हमारी वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो हमारा केस 2 था, that whenever the charge particle enters the magnetic field normally it gets started following the circular trajectory, वो सर्कुलर पाथ ओबे करना शुरू कर देगा। बट याद रखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ही हम लोग B में एंटर हुए, D2 के अंदर एंटर हुए, तो मैग्नेटिक फील्ड ने हमारे ऊपर फोर्स लगाया कितना, BQV, क्योंकि वेलोसिटी आ गई है मेरे पास, और मैग्नेटिक फोर्स हमें रिस्पॉन्स करेगा कौन सी ट्रेजेक्टरी के लिए, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी के लिए, जिसकी रेडियस कितनी होगी, mv/bq। तो देखो पहले मेरे पास वेलोसिटी था नहीं, तो मेरे पास कोई सर्कुलर पाथ नहीं था, बट पहले मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस रीजन में, जिसने मुझे कंपेल किया, मतलब चार्ज पार्टिकल को कंपेल किया कि वो D2 में एंटर करे, क्योंकि D2 होलो कंडक्टर है। और जैसे मैं D2 में एंटर किया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, बट वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ से साउथ, और मैं इस तरीके से जा रहा हूं, यानी आई विल एंटर द मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री। और जैसे मैं 90 डिग्री पे एंटर करूंगा तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल वुड बी मैक्सिमम, and if the force would be maximum, and you all know that अगर आपका थीटा 90 डिग्री है तो ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, सर्कुलर, और सर्कुलर होगी तो रेडियस भी होगा, और रेडियस उस वेलोसिटी के साथ कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली। तो पहले मेरे पास वेलोसिटी थी नहीं, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास वेलोसिटी आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो आपको एक्सेलरेट कर रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आपकी वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकेंड है तो 1 मीटर ही रहेगा। ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं, और हमने आज भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कभी भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता, बस वो केवल डायरेक्शन यानी पाथ को बदलता है। तो जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक रीजन यानी D में एंटर करेंगे तो हमारी ट्रेजेक्टरी सर्कुलर होनी शुरू हो जाएगी। तो व्हाट वुड बी आवर ट्रेजेक्टरी, हमारी ट्रेजेक्टरी सर्कुलर होगी इस तरीके से, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर कर रहे हैं, और जैसे ही हम 90 डिग्री पे होंगे ट्रेजेक्टरी सर्कुलर, हाँ उस सर्कुलर की रेडियस कितनी होगी वो डिसाइड करेगा कि आपकी वेलोसिटी कितनी है। गॉट इट। अब
जैसे ही हम D2 में मूव किए तो हमने सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो किया और हम सर्कुलर होते होते यहां तक पहुंचे। कहां तक? हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल। जैसे ही मेरा पाथ सेमी सर्कल हुआ, मीन जैसे ही मैं D2 के एंड पे पहुंचा, अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही हम D2 के एंड पे पहुंचेंगे, हमारा जो AC सोर्स है वो अपनी पोलैरिटी को स्विच करेगा। सो वी विल डिजाइन, हम ये जानबूझ के डिजाइन करेंगे कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल D2 को छोड़ के D1 की तरफ आ रहा है, क्योंकि सर्कुलर हो गया ना, घूम के वापस आना है, तो जैसे ही ये इधर आने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो D2 के एंड पर पहुंचेगा, एट द सेम स्पॉट द पोलैरिटी इज गोइंग टू चेंज। ये वर्किंग चल रहा है तो अब पोलैरिटी बदल गया बिकॉज ऑफ द AC सोर्स। अब अगर पोलैरिटी बदल गया, नाउ द D2 बिकम पॉजिटिव एंड D1 बिकम नेगेटिव, और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई। ओके, तो अब मैं चार्ज पार्टिकल, मेरे पास वेलोसिटी अभी भी कितनी है? 1 मीटर है भाई। पहले मैं 0 पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने मुझे 1 मीटर की वेलोसिटी दी, जिससे मैं D2 में एंटर हुआ। D2 में मैग्नेटिक फील्ड थी जिसने सर्कुलर ट्रेजेक्टरी यानी सर्कुलर पाथ के लिए मुझे कंपेल किया बिकॉज ऑफ BQB। बट मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वेलोसिटी में ना तो इंक्रीजमेंट करता है ना ही डिक्रीजमेंट करता है, यानी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। अभी भी मेरी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, बट जैसे ही मैं D2 को लेफ्ट करने वाला हूंगा, ऑन द स्पॉट मेरा पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा। तो अब D1 नेगेटिव और D2 पॉजिटिव। अब D1 क्या करेगा? अब आप बाहर निकलने वाले हो, ओके, और जैसे ही आप बाहर निकलने वाले हो तो D2 पॉजिटिव है, तो वो आपको रिपेल करेगा, और D1 आपको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो देखो, पहले आप 0 पे थे, अब आप 1 मीटर से इधर गए, अभी भी आपकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। अब आपको कोई पीछे से पुश कर रहा है और आगे से आपको पुल कर रहा है। आप 1 मीटर की स्पीड से पहले से ही हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट 1 मीटर अगर मैं आपको फिर से पीछे से पुश करूं और आगे से पुल करूं, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगा। यानी ये जैसे ही इन दोनों के बीच में आएगा, इस रीजन में आएगा, और इस रीजन में क्या लग रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, और जैसे ही इस रीजन में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा फिर से, यानी D2 इस बार रिपेल करेगा और D1 अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बट आप पहले से 1 मीटर से हो, तो अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ती है तो लेट्स सपोज अब आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड, और अब आप 2 मीटर पर सेकंड से कहां एंटर करोगे? D1 में एंटर करोगे। बट सिंस D1 जो ये D1D है, ये D भी होलो कंडक्टर है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी अब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स केवल तभी लग रहा है जब आप दोनों D's के बीच में मूव कर रहे हो, और इलेक्ट्रिक फोर्स का काम क्या है? आपकी स्पीड को बढ़ाना। तो पहले 0 से 1 किया, बट अंदर कुछ नहीं हुआ, अब 1 से 2 कर दिया। अब जैसे ही आप D1 में घुसोगे, यहां पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ लग रही है, और आप कुछ इस तरीके से एंट्री मार रहे हो, और अगर आप कुछ इस तरीके से एंट्री लेके आ रहे हो, तो थीटा फिर से कितना डिग्री? 90 डिग्री। थीटा 90, तो ट्रेजेक्टरी फिर से सर्कुलर, और सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होगी तो आप इस बार फिर से सर्कुलर पाथ पे घूमेंगे। You are going to again move in a circular path, but this time the radius of that circular path is going to be more as comparison to previous radius. तो जब D2 में आप लोग घूमे थे, उस टाइम जो आपकी रेडियस थी, इस बार आपकी रेडियस उससे ज्यादा होगी, बिकॉज रेडियस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब हम D2 में एंट्री किए थे तो हमारी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, बट D2 से बाहर निकले तो 1 ही है, बट जब D2 से बाहर निकले तो 1 है, बट जब D1 में एंटर किए तो वो वेलोसिटी लेट्स सपोज 2 हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने पीछे से पुश किया है और आगे से पुल किया, पीछे से आपको पुश किया है और आगे से आपको पुल किया है, और इस वजह से आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। बट आप मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर कर रहे हो तो ट्रेजेक्टरी सर्कुलर है। बट अगर ट्रेजेक्टरी सर्कुलर है, बट उसके साथ साथ आपकी वेलोसिटी भी तो बढ़ गया है, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, यानी अगला जो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होगी, अगला जो सर्कुलर पाथ होगा, वो ग्रेटर रेडियस का होगा। ओके, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को फिर से कर रहा हूं, और फिर आप फिर से सेमी सर्कुलर पाथ को ओबे करेंगे। तो आपकी वेलोसिटी पहले 0 थी, 1 हो गई, 2 हो गई। अब जैसे ही आप D1D को इसको लेफ्ट करने वाले होंगे, AC अपनी फिर से पोलैरिटी बदल देगा। हम लोगों ने ऐसे डिजाइन किया है कि जब भी हम D को स्विच करेंगे,
जब भी हमारा चार्ज पार्टिकल इस वाली डी से उधर कूदेगा और उस वाली से इधर, उसी टाइम हमारी पोलैरिटी बदल जानी चाहिए। और जैसे ये होगा फिर से क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इसे रिपेल करेगा ये इसे अट्रैक्ट करेगा, और फिर आपको एक फिर से पीछे से पुश मिलेगा आगे से पुल मिलेगा, और आपकी वेलोसिटी जो कि 2 थी, क्योंकि आप जब तक आप इस सर्कुलर पाथ पे हो आपकी वेलोसिटी 2 की 2 ही रहेगी, ओके, क्योंकि आप एंटर किए थे 2 से, और मैग्नेटिक फोर्स केवल आपकी डायरेक्शन बदलेगा, आपके अंदर कोई वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। अब जैसे ही आप यहां पे पहुंचेंगे अब आपकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही आप D2 में एंटर कर रहे हो अब वही फंक्शन, होलो है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बट अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो है, और उसकी वजह से आप 90 डिग्री पे जा रहे हो, तो ट्रेजेक्टरी फिर से सर्कुलर, और सर्कुलर होगी तो इस बार सर्कुलर की रेडियस पुराने वाले से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इस बार आपकी वेलोसिटी बढ़ गई है, ओके। फिर नेक्स्ट टाइम फिर पोलैरिटी बदलेगा, फिर आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। 3 मीटर हो गई, अगली बार 4 मीटर, तो अगली बार और बड़ा रेडियस, और इस तरीके से आप लोग काम करते रहेंगे। एंड फाइनली जैसे ही आप लोग अपनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी पे पहुंच जाए, देखो पहले 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 हुई 2 हुई, फॉर एन एग्जांपल 3 हो गई 4 हो गई, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो हर सेमी सर्कुलर का पाथ का रेडियस बढ़ता जा रहा है, और इस तरीके से एज सून एज यू रीच, जैसे ही आप लोग अपनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी पे पहुंच जाए, मान लीजिए आपको 4 मीटर पर सेकेंड का चार्ज पार्टिकल चाहिए था, यू वांट अ चार्ज पार्टिकल जो कि 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करे, जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी 4 हो गई, मास उसका कुछ होगा। तो अगर आप अपनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी पे पहुंच चुके हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी पे पहुंच गए मींस जैसे ही हम लोगों ने अपना रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लिया, हम लोग अपने चार्ज पार्टिकल को इस विंडो से बाहर निकाल लेंगे और हम लोग उसे यूज कर लेंगे जो भी हमें यूज करना है। ओके, कहां यूज करेंगे मैंने बताया, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं, बट हम अपने रिक्वायर्ड चार्ज पार्टिकल को टेक आउट फ्रॉम द विंडो। So by this manner we can accelerate the charge particle. Accelerate means velocity को change करना, rate of change of velocity. तो रेस्ट पे था, फिर 1 हुई 2 हुई 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, और with higher kinetic energy, with high energy we will accelerate the charge particle with high energy. यही हमारी डेफिनेशन थी साइक्लोट्रॉन की, और यही हम लोगों ने किया। I hope am I clear with this concept? मैं इस कॉन्सेप्ट से आपके साथ बिल्कुल क्लियर हूं कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो चुकी है, तो मैंने एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, आप बस इस वर्किंग को समझ सकते हो, एंड बाय दिस मैनर वी कैन एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। वैक्यूम चैम्बर है तो ड्यूरिंग दिस वो किसी अदर पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल के साथ कोलाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोलिजन नहीं होगा तो एनर्जी लॉसेस नहीं जाएंगे, वो अपनी एनर्जी को मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन करेगा। अगर यहाँ पे एयर यूज हो जाता है, कोई अदर फॉरेन पार्टिकल होता, तो डेफिनेटली ये क्यू चार्ज पार्टिकल उससे कोलाइड करता और अपनी एनर्जी को लॉस में लेके जाता। गॉट इट दैट पॉइंट? एंड नाउ आई विल डिस्कस, तो ये तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए दिया था। ओके, नाउ वी विल डू द वर्किंग, हम लोग वर्किंग को लिखेंगे, बट नाउ आई विल वांट टू क्लियर द नेम साइक्लोट्रॉन। क्या? साइक्लोन। अब देखिए इसका नाम बीच से शुरू हुआ था और घूमते घूमते रेडियस बड़ी होती जा रही है और गोल 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 बढ़ता जा रहा है, और साइक्लोन ऐसे ही होता है, जब अर्थ के पास होता है तो नीचे जो साइक्लोन का जो नीचे का रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ विंड होता है वो ज्यादा कम होता है, तो पास पास हो, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो साइक्लोन हमारे पास, ये तो आप जानते ही हो, इस तरीके से बढ़ता जाता है साइक्लोन। तो साइक्लोन हमेशा ऐसे ही बनते हैं, इसलिए इसका नाम भी साइक्लोट्रॉन है। That's why this cyclotron word is being pretty much inspired from the cyclone word, क्योंकि इसका जो मोशन करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं वैसा ही है। I hope am I clear with the working? मैं आपकी वर्किंग से क्लियर है? Now let's write the working. तो हमारे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, मैंने D1 को पहले पॉजिटिव लिया, D2 को नेगेटिव। आप चाहें तो इसे स्विच लेके उल्टा घुमा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So D1 is positive and D2 is negative. Positive charge, a positive charge Q is placed in between the D's, in between the D's. So thus initially due to what? Electric field.
तो शुरुआत में किसकी वजह से मूव करना शुरू करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड शुरू में कुछ नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट पे, और रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। सो दस इनिशियली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज will enter into D2। कौन सी D में एंटर करेगा? D2। एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन D2 it follow the circular path of given radius। वो किसी भी गिवन रेडियस का एक सर्कुलर पाथ ओबे करेगा। नाउ एज इट स्विचेस द डी, जैसे ही वो डीज को स्विच करेगा, मींस जैसे ही वो डी को क्या करेगा? चेंज करेगा। सो एज सून एज इट स्विचेस द डी, the polarity of AC source also changes। ओके, तो यानी AC सोर्स की जो पोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाए। Thus now charge Q will enter D1 with higher velocity, क्योंकि इस बार वो D1 में एंटर करेगा हाई वेलोसिटी से, क्योंकि D2 इस बार पुश करेगा क्योंकि वो पॉजिटिव बन गया, D1 नेगेटिव, तो ये पुश करेगा, ये उसे पुल करेगा। with higher velocity resulting greater radius circular path, यानी अगली बार रेडियस का जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। तो आप लिख सकते हैं रेडियस इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड it will continue till the required velocity is attained। जब तक आप रिक्वायर्ड वेलोसिटी अटेन नहीं कर लेते तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू, एंड फाइनली charge will taken out from window, और फाइनली आप चार्ज को विंडो से फिर बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस इज होल अबाउट द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ये हमारे साइक्लोट्रॉन का वर्किंग है कि हम लोगों ने यहाँ पे इसे ऑब्जर्व किया। सो दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ पे बनने वाला है। अभी इसके लिए थियोरेटिकल और इसके मैथमेटिकल वर्क बाकी है, इसे हम लोग अभी सीन और चेकआउट करेंगे, बट टिल देन प्लीज चेक दिस आउट। डन? ओके, सो दिस इज द साइक्लोट्रॉन। अब इसकी वर्किंग में और इसके थियोरेटिकल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड वी विल डू इट वेरी मच क्विकली। ओके, नाउ आई एम रबिंग द डायग्राम, मींस मैं डायग्राम को रब कर रहा हूं। नाउ वी विल डू द थियोरेटिकल पोर्शन। सो थ्योरी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेडियस को ओबे कर रहा है, तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग निकालने वाले हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी वो चेकआउट कर लेते हैं। सो सर्कुलर पाथ बिकॉज ऑफ विच फोर्स, कौन से फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ चल रहा था? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो दस ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू विच फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, जो कि कितना लग रहा है? BQV, क्योंकि 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, और यही सर्कुलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इट शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे मैग्नीट्यूड ही सेंट्रीपिटल के इक्वल होना चाहिए। एंड व्हेन वी सॉल्व दिस आउट, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ? mv/dq। आई नो ये चीज हम लोग कर चुके हैं सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में, बट यहां पे भी वही है, तो एक बार वापस से जल्दी से रिपीट करते हैं। नाउ सेकंड इज time period. So what is the time period? Time period is the time taken to complete one revolution. But
यहां पे थोड़ा सा अलग बात है कि यहां पे कभी भी वन कंप्लीट रेवोल्यूशन तो हुआ ही नहीं। आपके चार्ज पार्टिकल ने कभी भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन तो किया ही नहीं, यहाँ पे हमेशा हाफ रेवोल्यूशन किया, फिर अगले हाफ में जब गया तो रेडियस अलग थी। तो पॉइंट इज दैट कि यहां पे हमारे पास रेवोल्यूशन कभी वन नहीं हुआ, हाफ हुआ। तो चलिए पहले हाफ का निकालते हैं। सो दस टाइम फॉर हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन के लिए टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना हाफ का, पाई आर। द होल सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का पाई इंटू आर, और वेलोसिटी जो भी v होगी, और रेडियस कितना है, रेडियस इज mv बाय b क्यूब डिवाइडेड बाय v, एंड वेलोसिटी कैंसिल विद द वेलोसिटी, तो टाइम टेकन इज पाई m बाय b क्यूब। बट ये टाइम किसका है, हाफ साइकिल का। Thus, complete time period, complete time period, तो अगली हाफ का भी टाइम इतना ही होगा। क्यों, देखो अगली हाफ में, इन नेक्स्ट हाफ मानते हैं रेडियस बड़ा है, बट उस रेडियस के बढ़ने के साथ साथ अगले हाफ साइकिल का टाइम वेलोसिटी भी तो बढ़ा है। तो अगले हाफ साइकिल की जो भी रेडियस होगी उसकी वेलोसिटी भी वही होगी, फिर से वेलोसिटी कैंसिल, यानी अगली बार भी टाइम उतना ही लगेगा। तो कंप्लीट टाइम पीरियड 2 टाइम्स ऑफ द हाफ, जो कि कितना हो गया 2 पाई m बाय b। नाउ द फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूला वही है जो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी का था, बट आप वो पीछे वाला कॉपी नहीं कर सकते जहां पे हमने 2 पाई r बाय b किया, बिकॉज जब हम 2 पाई r यूज कर रहे हैं इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि हम लोग 2 पाई r को कवर कर रहे हैं। बट यहां पे कभी भी चार्ज पार्टिकल ने डीज में 2 पाई r कवर नहीं किया, तो चार्ज पार्टिकल हैवंट कवर्ड द 2 पाई r, हमेशा उसने क्या कवर किया, पाई r। तो दिस इज द वे ऑफ टेक्निकल कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम यहाँ पे केवल पाई r करके घूम रहे हैं। तो हम पाई r का पहले टाइम निकालेंगे, हाफ का टाइम, फिर देख लेंगे यार ये टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, और अगर नहीं कर रहा है तो जितना टाइम फर्स्ट में था अगले में देखो रेडियस बढ़ी, क्यों बढ़ी अगले साइकिल में रेडियस, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी, बट टाइम तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ में फर्स्ट इतना रेडियस में अगर 1 सेकंड लगा है तो इसमें भी 1 सेकंड ही लगेगा। तो इसका मतलब वापस से उसी डी में आना, वापस से उसी डी में आना। तो ये तो आपका एक तरीके से रेवोल्यूशन ही हो गया कि भाई पहले D2 में एंटर कर रहे थे, फिर D1 में गए, अब वापस से D2, तो एक कंप्लीट साइकिल होगी ना, डीज की साइकिल। किसकी साइकिल, डी की साइकिल। हाँ वो मैं मानता हूं आप ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आए, बट आपने डी की साइकिल कंप्लीट कर दी, पहले D2 में घुसे, फिर D1 में गए, वापस D2 में, तो डी की तो साइकिल कंप्लीट हुई। ये डी की साइकिल का टाइम पीरियड है कि भाई इसमें 1 सेकंड लगा तो इसमें भी 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता नहीं, तो टोटल टाइम पीरियड 2 सेकंड, ताकि आप डी को वापस से कब रिपीट करने वाले हैं। ओके, तो इस टाइम पीरियड को समझना, ये टाइम पीरियड है कि आप डी की साइकिल को कैसे कंप्लीट कर रहे हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डी साइकिल, उन डी को रिपीट करने की साइकिल के टाइम पीरियड को निकाल रहे हैं। नाउ थर्ड इज फ्रीक्वेंसी, कि आप डी को कितने रेट से फ्रीक्वेंसी कर रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू बी क्यू बाय 2 पाई एम, और इसे ही हम लोग बुलाएंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी यानी डी को चेंज करने की फ्रीक्वेंसी, यानी आपका चार्ज पार्टिकल किस रेट से, कभी D2, D2 से D1, D1 से D2, तो वो ऑसिलेशन कैसे कर रहा है, कैसे बार बार वो स्विच कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम बुलाएंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ओके, नंबर 4 ऑब्वियस ही बात है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक बार जल्दी से इसके बारे में हेल्प कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, और जब आप म्यू की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा बी क्यू बाय एम। तो ऑलरेडी ये भी वही चीज है, यानी हम लोग वही पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं जो हम लोगों ने सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में किए थे, बस ये टाइम पीरियड का तरीका अलग है। हाँ पॉइंट्स थोड़े से अलग है, वहां पे आप एक ही पॉइंट पे घूम रहे थे, यहाँ पे डी को स्विच कर रहे हो। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज काइनेटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है,
Why? क्योंकि हमारा मकसद ही यही था. Our motto was that we have to accelerate the charged particle with higher energy. तो डेफिनेटली अगर हम चार्ज पार्टिकल को हायर एनर्जी से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी तो मालूम होगी. सो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर और वेलोसिटी यहां से कितनी आएगी बी क्यू आर बाय एम. तरीका वही है जो पहले यूज किया था. सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर. So this is the formula for kinetic energy of charged particle. But एक छोटा सा पॉइंट है, ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है. देखो इस बात को समझो. एक पॉइंट था कि whenever the charged particle enters into a magnetic field, its kinetic energy always remain constant. ये कांस्टेंट था. मैं यहां पे बोल रहा हूं ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है. तो देखो दोनों काइनेटिक एनर्जी को समझिए. वो जो काइनेटिक एनर्जी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो क्या था? That was the kinetic energy of particular charge in particular magnetic field with particular velocity. अगर एक given charge Q charge B magnetic field में V velocity से enter करता है तो उसकी kinetic energy जो भी है K है और वो हमेशा उतनी ही रहेगी. जब तक हम उस चार्ज को नहीं बदलें, जब तक हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बदलें या जब तक हम उसकी वेलोसिटी को नहीं बदलें. पॉइंट समझ रहे हो? बट यहां पे साइक्लोट्रॉन में हो क्या है? साइक्लोट्रॉन में जैसे ही आप डी को स्विच कर रहे हो आपकी वेलोसिटी बदल रही है. तो डेफिनेटली यहां पे एक ऐसा फैक्टर है जो हर स्विच के बाद चेंज हो रहा है. ओके, चार्ज वही है, क्यू वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, दोनों मैग्नेट के बीच में यूनिफॉर्म लग रहा है, बट एक फैक्टर ऐसा है जो हर बार बदल रहा है और वो फैक्टर है वेलोसिटी. और वो किसने की? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पुश और पुल की वजह से. इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. उसका रोल है आपको पुश और पुल करना ताकि हर स्विच के बाद आपकी वेलोसिटी बढ़े. और मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या है? आपको रोटेशन में घुमा के रखे. ओके, सो बाय दिस टर्न ताकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप बार-बार एक डी से दूसरे डी इस तरीके से आते रहे. तो ये मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, वो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? वो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वो डी को चेंज नहीं कर रहा. इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है. वो अब बार-बार ये पॉजिटिव नेगेटिव बदल रहा है, वो एसी सोर्स चेंज कर रहा है. तो आई थिंक अब आपको फ्रेम और सबके यूजेस समझ में आ रहे हैं. तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहां पे चेंज हो रही है. किसकी? चार्ज पार्टिकल की साइक्लोट्रॉन के अंदर. और वो डिपेंड कर रही है एक ऐसे फैक्टर पे जो हर बार चेंज हो रहा है और वो है रेडियस. बोला ना, क्योंकि रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो रेडियस. तो इसका मतलब इस काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाएगा. बट कब तक? तो इसकी कोई लिमिट तो होगी. सो मैक्सिमम लिमिट क्या है? फॉर मैक्सिमम. तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे. तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब हो सकता है? जब रेडियस मैक्सिमम हो. और किसी भी सर्कुलर पाथ की मैक्सिमम रेडियस कैपिटल आर के बराबर हो सकती है. और कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ डी. उन डीज की कितनी रेडियस है, उस कमरे की कितनी रेडियस है जिसके अंदर वो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है. सीधी सी बात है, अगर आपका रूम ही 10 सेंटीमीटर रेडियस का है तो चार्ज पार्टिकल 10 सेंटीमीटर ज्यादा से ज्यादा सर्कुलर पाथ ले सकता है. ऐसा तो है नहीं कि कमरा तो 10 सेंटीमीटर का और चार्ज पार्टिकल 12 सेंटीमीटर के सर्कुलर पाथ पे के रेडियस पे घूम रहा है. ये पॉसिबल नहीं है. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग कितना अटेन कर सकते हैं? के ई मैक्स. इट विल बी हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बाय एम, where capital R stands for the radius of these. So this is whole about the theoretical. ये हमारे साइक्लोट्रॉन की थ्योरी, उसके बारे में, उसकी रेडियस निकालना, उसका टाइम पीरियड, बट थोड़ा तरीका अलग है. फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी. डन. अब बस छोटे से 5 to 10 मिनट्स का काम है. अब वो जल्दी से एक बार क्विकली कर लेते हैं. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. तो पॉइंट नंबर 1 जो हमें यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, एंड दैट इंपॉर्टेंट टर्म इज रेजोनेंस कंडीशन. सो व्हाट इज रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन?
रेजोनेंस मींस मैक्सिमम आउटपुट। तो हम साइक्लोट्रॉन से सबसे अच्छा आउटपुट कब ला सकते हैं? जब एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं। तो देखो, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है। कब बढ़ रही है? उस पॉइंट को पकड़िए, उस स्पॉट को पकड़िए। और वो पॉइंट क्या है? जब आप डी को स्विच कर रहे हो। और डी स्विच कब हो रहा है? मतलब आप D1 से D2 जा रहे हो, D2 से D1 आ रहे हो चार्ज पार्टिकल। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि जब हम डी स्विच कर रहे हैं उसी टाइम हमारे AC का स्विच भी हो रहा है, यानी AC की पोलैरिटी बदल रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस टाइम आप D बदल रहे हो उसी टाइम पोलैरिटी बदले। ओके, सो इस वजह से यही कंडीशन कहलाएगी रेजोनेंस कंडीशन, दैट द कंडीशन of cyclotron, the condition of cyclotron in which frequency of cyclotron यानी आपकी पोलैरिटी चेंज, आपका मतलब चार्ज पार्टिकल की पोलैरिटी चेंज करने का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स। तो जब आपका AC सोर्स का फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, अगर ये दोनों मैच होते हैं, मान लीजिए AC सोर्स फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, मान लीजिए अगर ये 1 सेकेंड में 10 बार अपनी पोलैरिटी बदल रहा है तो आपको भी 1 सेकेंड में 10 बार पोलैरिटी बदलने का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। यानी उल्टा बोले, अगर आप 1 सेकंड में 10 बार D बदलते हो तो इसका मतलब AC को भी 1 सेकंड में 10 बार पोलैरिटी बदलनी चाहिए। अब ऐसा हुआ, इमेजिन दैट कि आप D2 से, ये D2 है, ये D1 है, आप D2 से D1 की तरफ पोलैरिटी तो चेंज कर रहे हो। तो ये पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो आपका चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर किया, सर्कुलर पाथ किया। अब आप जा रहे हो D2 से D1 की तरफ, क्योंकि सर्कुलर पाथ ने आपको घुमा के वैसे ले आया। अब आप जाना चाहते हो D1, बट AC की पोलैरिटी ही नहीं बदली, AC का पोलैरिटी ही नहीं बदल रहा उस टाइम पे जिस टाइम पे आप बदल रहे हो। इसका मतलब मान लीजिए वो थोड़ा लेट हो रहा है, तो अभी भी D1 पॉजिटिव और D2 नेगेटिव है। आपकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड, D2 अभी भी नेगेटिव है और D अभी भी पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो और पोलैरिटी नहीं बदली, तो सामने कौन है? पॉजिटिव, वो आपको रिपेल करेगा। तो यानी आप भाग के आ रहे हो 1 मीटर से, बट सामने वाला इस बार आपको रिपेल कर रहा है और पीछे वाला आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जाने नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते हैं हाई एनर्जी के साथ। वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेट तो होगा, क्योंकि वेलोसिटी चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, चाहे वो रिटार्डेशन ही हो, बट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी कम होती जाएगी, और ये हम नहीं चाहते। इसलिए इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का मैच होना बहुत जरूरी है। ये न्यूमेरिकल में भी काम आता है। तो कई बार आपको AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी दे देता है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी दे देता है, तो याद रखिए साइक्लोट्रॉन अगर अपना बेस्ट काम दे रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी AC सोर्स की है वही साइक्लोट्रॉन की होगी। और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है? हम लोगों ने अभी डिराइव किया था, क्या? सॉरी, BQ/2πm। इस बात को याद रखिए प्लीज। डन है? तो एक छोटा सा पॉइंट रेलिवेंटली यहां से, अब सीधी सी बात है। अब मैं आपसे बस फाइनली 2 चीजें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट इज यूजेस। तो नंबर 1, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल is used to study nuclear structure। तो ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने में भी हेल्प करता है। तो जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ उस चार्ज पार्टिकल को हम लोग किसी न्यूक्लियस पे बॉम्बार्ड करते हैं और फिर देखते हैं कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या टूट रहे हैं, और जब ये पता चलेगा उसका कंपोनेंट क्या टूटा तो उसे स्टडी करने में हेल्प करेगा। मान लीजिए आप कोई किसी बॉडी को अगर स्टडी करना चाहते हो, कोई नया आइटम आपके सामने है, आप जानना चाहते हो उसके अंदर क्या है, तो आपको उसे तोड़ना पड़ेगा, आपको उसे ओपन करना पड़ेगा। जब आप उसे ओपन करोगे तब आपको पता चलेगा। अगर किसी चीज को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं हुआ तो आप कहेंगे ओके यार ये तो बहुत कम वीक फोर्स से अट्रैक्टेड था, बट किसी चीज को तोड़ने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो फिर आपको लगेगा नहीं यार ये बहुत ज्यादा एनर्जी से बाउंडेड है।
तो इस तरीके से हम लोग इस एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में स्टडी करने में हेल्प कर सकते हैं। These also used to carry out nuclear reactions। तो कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस को कैरी आउट करने में ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी करने के लिए हमें किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करना पड़ता है, न्यूट्रॉन को। और जब हम न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं तो उसके लिए हमें पहले न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालना पड़ेगा, और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए हमें बाहर से एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल उस पर थ्रो करके मारना पड़ेगा। जैसे कॉलिजन में होता है ना, इलास्टिक कॉलिजन में हम दो बॉडी को स्ट्राइक करते हैं तो जो दूसरा बॉडी रेस्ट पे है वो बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट यूजेस जो अभी के लिए आपके लेवल के हैं, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम इसे स्टडी करते जाएंगे। नाउ द फाइनली आफ्टर द यूजेस इज लिमिटेशंस। तो साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिटेशन है। नंबर 1, कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को अगर डी के बीच में रखते हैं तो वो नाइदर पॉजिटिव की तरफ जाएगा नाइदर नेगेटिव, और अगर वो जाएगा ही नहीं तो फिर कहां पे सर्कुलर पाथ बनेगा, कुछ होने ही नहीं वाला। इसलिए हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, उसे फिर हम किसी न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करते हैं, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स वीक हो, जो हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा था कि सबका बाइंडिंग एनर्जी बराबर नहीं होता है। तो एक ऐसे न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेंगे जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम होगा, जहां से न्यूट्रॉन ब्रेक होगा, और उस न्यूट्रॉन को फिर हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ब्रेक होगा तो वैसी बात आपने फेंक के मारा तो उसके पास भी एनर्जी जाएगी, और वो न्यूट्रॉन को हम यूज करेंगे फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने में। बट उसके लिए हम न्यूट्रॉन को इनडायरेक्ट वे में एक्सेलरेट करते हैं, बट डायरेक्टली चार्ज पार्टिकल से नहीं कर सकते। सेकेंड, कांट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। हम यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते। इसके पीछे का एक रीजन है। रीजन इज दैट इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, डेफिनेटली वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव डी की तरफ आएगा और वैसे घूमेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। यू ऑल नो दैट इट मास इज 10⁻31 kg, अगर मैं उस फैक्टर का बात करूं। और अगर किसी बॉडी का मास बहुत कम है और अगर आप उस पर एनर्जी लगाते हो, उस पर वर्क डन करते हो, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा जाएगी। हल्की चीज पे अगर हम वही 10 न्यूटन फोर्स लगाए तो वो वेलोसिटी को ज्यादा ही अटेन कर लेगा, और अगर उसकी वेलोसिटी को ज्यादा हो जाती है तो वो डी को बहुत जल्दी रैपिड मैनर में डी को चेंज करेगा, यानी D2 से D1, D1 से D2 बहुत जल्दी करेगा। और उसका जो डी को चेंज करने का रेट है, जो हम जिसे हम साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं, वो एसी की फ्रीक्वेंसी के साथ फिर मैच नहीं कर पाती। हम चाहे जितना भी कर लें, बट एसी की भी पोलैरिटी चेंज करने का एक लिमिट है, वो हम देखेंगे जब हम एसी यानी अल्टरनेट करंट को पढ़ेंगे। तो वो मिसमैच नहीं हो पाता, वो मैच नहीं हो पाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना हम बेस्ट नहीं मानते। थोड़ा बहुत होगा बट बेस्ट आउटपुट नहीं देगा। तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉन एक फैक्टर है। एंड लास्ट थर्ड इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी है, माइट आप लोगों ने सुना होगा, जो मास के बारे में बताता है। m is equal to m0 1 plus v square by c square, where m0 stands for mass at rest। तो सीधी सी बात है, यहां पे उन्होंने बताया है कि जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मास m0 है, बट जब भी बॉडी मोशन में आती है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे जैसे बॉडी वेलोसिटी अटेन करती जाएगी उसका एक्चुअल मास कम होता जाएगा। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या है, ये तो हम जानते हैं साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, dq/2πm। अब ये फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी जब तक ये सेम है। तो देखो इस फैक्टर में b मैग्नेटिक फील्ड वो कांस्टेंट है, चार्ज वो कांस्टेंट है, मास वो भी कांस्टेंट है। बट अगर हम आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहां पे लेके आए तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा मास चेंज होगा, और अगर मास चेंज होगा
तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। बट अगर हम बेस्ट आउटपुट चाहते हैं तो हमें एसी की भी फ्रीक्वेंसी उतनी रखनी चाहिए। अब हर रेवोल्यूशन के बाद यानी हर स्विच के बाद तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब आप D1 से D2 जा रहे हैं, D2 से D1, अब अगर हर स्विच के बाद वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हर स्विच के बाद मास भी चेंज होगा। अब अगर हर स्विच के बाद मास चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन चेंज होगी। और अगर हम आउटपुट अच्छा चाहते हैं तो हमें एसी की फ्रीक्वेंसी उसके बराबर रखनी पड़ेगी, यानी हमें भी हर स्विच के बाद एसी सोर्स यानी उस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी भी बार बार बदलनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत डीपली अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है। सो दस with change in velocity mass of particle also changes. Mass of particle also changes, resulting disobey of resonance condition। तो जो resonance condition हम लोगों ने पढ़ी वो उस कंडीशन को डिसओबे कर देगा। ओके, एंड दिस इज द लिमिटेशंस। तो साइक्लोट्रॉन की कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड हियर आई एम कंप्लीटली डन विद द साइक्लोट्रॉन। सो प्लीज गो विद द लेक्चर, गो थ्रू इट, चेक दिस आउट, एक बार इसे यहाँ पे देखिए और एक बार इसे कंप्लीट कीजिए। होल थ्योरी, होल यूजेस, लिमिटेशंस। ओके, ठीक है, तो प्लीज एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट अ लिंक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, बट आज लिंक किसी असाइनमेंट का नहीं है, अ लिंक फॉर अ यू कैन से 3D एनिमेटेड साइक्लोट्रॉन। तो जब आप एक बार इस लेक्चर को कंप्लीट कर ले तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक 3D एनिमेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा, जहां से आप उस YouTube से उस लिंक को या उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और एक बार जो डिस्कशन हमने किया आप उसे 3D में एक बार उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। So please go through it. Thank you.